Yes. Data sufficiency. Yes. Question. Okay. Consider the question and the statements. Age of each of P and Q is less than 100 years but more than 10 years. If you interchange the digits of the ages of P, the number represent the age of Q. मतलब देखो अभी पिछला भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही P का अगर एज है AB मतलब वो नंबर, सो Q विल बिकम BA, राइट? Okay, P and Q, the age of each of P and Q is less than 100 years but more than 10 years. If you interchange the digits of age P, the number represents the age of Q. Okay, what is the difference of their ages? We need to find the difference. So the age of P is greater than the age of Q. P का age Q से greater है. Okay, ये statement 1 है. And statement 2 says the sum of their ages is 11/6 times their difference, right? अब देखो sum of their ages मतलब P plus Q is 11/6 times of their difference, P minus Q, right? If we solve this, P हम कैसे लिख सकते हैं? 10A plus B, या फिर पहले सॉल्व करते हैं. P plus Q is equal to, sorry, so P is 10A plus B, क्योंकि P का जो अगर नंबर लिखना है तो AB मतलब ये यूनिट प्लेस या 10th प्लेस, ये यूनिट प्लेस या 10th प्लेस, प्लस 10B plus A is equal to 11/6 in bracket 10A plus B minus 10B minus A, right? If we solve this, 10A plus A 11A बनेगा और 10B plus B 11B बनेगा is equal to 11/6 10A minus A 9A बनेगा minus 9B. अब देखो 11 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो A plus B is equal to 11/6, 9 कॉमन निकलेगा तो A minus B. Okay, so 11 gets cancelled out. 3 2s are 6, 3 3s are 9. 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3A plus 3B is equal to 3A minus, sorry, 2A plus 2B is equal to 3A minus 3B. So A will be equal to 5B. मतलब ये जो A वाला नंबर है B से 5 टाइम्स से, मतलब B अगर 1 है तो A 5 है, क्योंकि उसके अलावा कोई वैल्यू हम B के लिए नहीं रख सकते. सो P का एज हो गया 51 और Q का एज हो गया 15 और उनका डिफरेंस आ गया 36, राइट? सो फाइंडिंग आंसर वाज नॉट द एम, वी हैव टू जस्ट डिसाइड कि ओके वी कैन फाइंड द आंसर, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी में वही जरूरी है. So, but we required both the statements. So option number C is correct. The question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered using either statement alone. दोनों statement required थे. और एक आखिरी वाला I think होगा ये, मतलब इस types of questions में critical reasoning. Main statement is followed by 4 statements. एक main statement दिया है और उसके साथ 4 सबऑर्डिनेट स्टेटमेंट है. मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट्स लेबल्ड P, Q, R, S. Choose the ordered pair of the statements where the first statement implies the second and the 2 statements are logically consistent with the main statement. Okay, एक मेन स्टेटमेंट क्या है कि प्रदीप becomes either a director or a producer. आइदर और वाला स्टेटमेंट कि एक साथ वो दोनों नहीं बन सकता है. ही इज आइदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर, और उस पे 4 सबऑर्डिनेट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट P इज प्रदीप इज अ डायरेक्टर, स्टेटमेंट Q इज प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, स्टेटमेंट R इज प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, स्टेटमेंट S इज प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर. नाउ सी, इजी वाला क्वेश्चन है, आइदर और वाला है. ही इज आइदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर. इफ पहला P स्टेटमेंट देख लिया तो प्रदीप इज अ डायरेक्टर. इफ ही इज अ डायरेक्टर then he is not a producer. So
P के साथ क्या आएगा, S आएगा. So P and S will be together. And if Pradeep is a producer, he is not a director. So Q के साथ R आएगा. So ये दो स्टेटमेंट्स लॉजिकल होंगे क्योंकि आइदर और है. So PS and QR or SP and RQ. So both SP and RQ. Option number C is correct. Option number C is correct, right? Easy वाला question. 75. Question number 75. A plus B means A minus B. A minus B means A into B. A into B means A divided by B. A divided by B means मतलब प्लस साइन के लिए माइनस का यूज किया है, माइनस साइन के लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन का यूज किया है और डिवीजन के लिए प्लस का यूज किया. ये रिप्लेस करना है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 3 माइनस 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 25. ये हमारा बॉडमास वाला एग्जांपल है. बस वो साइन हमें वही नहीं रखने. वी हैव टू चेंज दोस साइंस अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल. सो 10 प्लस 30, प्लस के लिए माइनस यूज करना है. सो इट बिकम्स 10 माइनस 30. माइनस 100 है, माइनस के लिए इंटू है, सो इंटू 100. उसके आगे इंटू 50 है, मल्टीप्लीकेशन के लिए डिवीजन वाला यूज करना है, सो डिवाइड बाय 50. एंड डिवीजन के लिए प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, सो प्लस 25. सो इसका आंसर हमें ढूंढना है. सो 10 माइनस 30 इंटू, अब देखो पहला ये बॉडमास रूल, पहला डिवीजन करना पड़ेगा. 100 डिवाइडेड बाय 50 बिकम्स 2 प्लस 25. सो 10 माइनस 30 इंटू 2 बिकम्स 60 प्लस 25. अब देखो ये एडिशन होगा 10 का और 25 का, इट बिकम्स 35 माइनस 60. सो इट बिकम्स माइनस 25. बहुत ही इजी वाला सवाल था ये. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी माइनस 25. बस साइंस रिप्लेस करके हमें प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन करना था. क्वेश्चन नंबर 76. If P means greater than, Q means less than, R means not greater than, okay, not greater than, so इसका सही नहीं होगा, A होगा. S means not less than, and T means equal to, then consider the following statements. Question number 76. देखते हैं हम. देखो 2x, हम ये साइंस रिप्लेस कर देते. 2x, बीच में साइन है s वाला. s का मीनिंग क्या है? s मीन्स नॉट लेस देन. व्हेन इट इज नॉट लेस देन, देन इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y. एंड 3x, t का मतलब है, t मीन्स इक्वल टू, 3x इज इक्वल टू 4z. Then we have to check whether 9y is, P का मतलब क्या है? P means greater than, 9y is greater than 8z. 9y is greater than 8z. ठीक है, हमने वो रिप्लेस कर दिया. और सेकंड वाला स्टेटमेंट है x q 2y. मतलब x q का मतलब क्या है? q मीन्स लेस देन. ठीक है, x इज लेस देन 2y एंड y इज, r का मतलब क्या है? r मीन्स नॉट ग्रेटर देन, मतलब लेस देन और इक्वल टू z. देन वी हैव टू प्रूव, यहां पे भी देन है. देन वी हैव टू प्रूव x इज, r इज व्हाट? r इज नॉट ग्रेटर देन, मतलब लेस देन और इक्वल टू z. So just check, 2x is greater than 3y and 3x is equal to 4z. Now we have to prove कि 9y is greater than 8z. Suppose मैं यहाँ पे 9y चाहिए ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको पूरे. So it becomes 6x is greater than or equal to 9y, right? और यहां पे मैं 8z करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं. एंड 6x इज इक्वल टू 8z.
व्हाट डज दीज टू स्टेटमेंट्स टेल अस कि यहाँ पे 8z 6x से इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 9y 6s से कम है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, राइट? ये ऑपोजिट होना चाहिए कि 8z मस्ट बी ग्रेटर देन 9y. So first statement is wrong, and second statement, x is less than 2y and y is less than or equal to z. X is less than 2y and y is less than or equal to z, but that doesn't prove कि x is less than or equal to z, क्योंकि x का रिलेशन 2y के साथ है, y के साथ नहीं है. So we cannot be sure कि x और z में हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते. So both these conclusions are wrong. ये इनइक्वालिटी से क्वेश्चन था. So neither 1 nor 2 is the correct answer, right? ओके, कोडिंग और डिकोडिंग पे दो क्वेश्चन थे, इजी वाले थे. इफ इन अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24, आई ऑलवेज टेल, ये वाला क्वेश्चन लिया भी था कि कोडिंग और डिकोडिंग में हमेशा जब लेटर्स और नंबर्स आते, सो इट इज 99% रिलेटेड टू द सीक्वेंस ऑफ दोज अल्फाबेट्स, राइट? कि A का सीक्वेंस 1 है, Z का सीक्वेंस 26 है, D का सीक्वेंस 4 है. ये जो अल्फाबेट में उनका सीक्वेंस है उससे रिलेटेड रहता है. सो 24 EFGH इज रिटन एज 1680. नाउ देखो, ABCD इज 24, अ स्मॉलर नंबर. EFGH, ABCD इज 24, EFGH is 1680, and we have to find कि IJKL is what. Now how ABCD gets converted into 24, how can be the relation can be established? So A का सीक्वेंस 1 है, B का सीक्वेंस 2 है, C का 3 है और D का 4 है. ये मल्टीप्लाई किया तो 24 हो जाए, राइट? मतलब उनका सीक्वेंस का मल्टीप्लीकेशन किया है. दिस इज द ओनली की हियर. EFGH का भी देखो, E का सीक्वेंस 5 है, 5 6 7 8, ये मल्टीप्लाई करके देखो, यू विल गेट 1680. तो IJKL का भी वही होगा, ABCDEFGHI. सो 9 into 10 into 11 into 12. So this multiplication will be 11880, I guess. So option number A is correct. बस इतना ही यहाँ पे फाइंड आउट आइडेंटिफाई करना था कि उनका सीक्वेंस का मल्टीप्लीकेशन, राइट? कोडिंग डिकोडिंग इज अ वेरी इजी चैप्टर. अगर सेम चैप्टर से, इफ इन अ सर्टेन कोड pot is written as a top and trap is written as a part, then how is arena written in that code? देखो, it is self explanatory. pot है, इसको बस रिवर्स किया है टॉप और इसके पहले a ऐड कर दिए. मतलब राइट द लेटर्स इन रिवर्स ऑर्डर और उसके पहले a लिखो. सेम विथ ट्रैप. ट्रैप का रिवर्स क्या होगा? PART, पार्ट. ये देखो, और उसके पहले a ऐड कर दिया. सिमिलरली अरीना को भी हम रिवर्स लिख देते, ANERA और उसके पहले एक A जोड़ देते. हमने सेम किया है, AANERA. देखो कहां पे AANERA, ऑप्शन नंबर डी. इतने इजी सवाल इस साल पूछे थे. मतलब देयर वर सम ट्रिकी क्वेश्चंस, बट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वन शुड नॉट मिस, राइट? सो यहाँ पे वर्ड को रिवर्स करके पहले ए ऐड कर दिया था, यही लॉजिक था. व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस 3, 14, 39, 84 स्टार एंड 258? नाउ मैंने पहले भी बताया कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अच्छी तरह से याद कर लो. देखो वर्ड्स क्या है, नंबर्स क्या है? 3, 14, 39, 84 स्टार और 258. सो दिस इज जस्ट एडिशन ऑफ 1 + 1 स्क्वायर + 1 क्यूब. 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का क्यूब भी 1 है, सो एडिशन इज 1. दिस इज एडिशन ऑफ 2 स्क्वायर + 2 क्यूब. देखो 2 स्क्वायर 4 and this is 8 + 4 12 + 2 14. This is addition of 3 square 3 cube. 27 + 9 36 + 3 39.
4 square plus 4 cube, it is 84. So our required star की जगह क्या आएगा? 5 square plus 5 cube, that is 5 square 25, 5 cube 125. So answer is 155. Answer is option number B, 155. ठीक है, squares cubes ये ध्यान में रखो. And the last question, in some code letters PQRST represents number 4, 5, 10, 12 and 15. It is not known which letter represents which number. ठीक है, if Q minus S is equal to 2S and T is equal to R plus S plus 3, then what is the value of P plus R minus T? अब देखो, PQRST के लिए some values दिए, but it is not known which letter represent which number. ये जम्बल्ड किया, लेकिन कुछ equations दिए, मतलब Q minus S is equal to 2S, so that means Q is equal to 3S. So Q का जो वैल्यू है वो S से 3 टाइम्स है. अब यहाँ पे दो ऐसे क्या बोलते पेयर्स है कि देखो, S could be 4, then Q could be 12. If S is 4, then Q is 12. If S is 5, then Q is 15. क्योंकि 5 और 15 भी है. Let's take one value and then just move forward, right? दूसरा इक्वेशन दिया है कि T is equal to R plus S plus 3, right? So अगर मैंने सपोज S की जगह 4 रख दिया तो क्या होगा, राइट? S की जगह अगर मैंने 4 रख दिया तो क्या होगा? So T will become R plus 4 plus 3 7, राइट? मतलब T और R में 7 का डिफरेंस होना चाहिए. और वो ऐसा कौन सा नंबर है? 5 और 12. Then T will become 12, R will become 5. But can T become 12? Because already जब मैंने S4 लिया तो Q 12 बन गया था. So T cannot become 12. इसका मतलब है कि Q का S का जो वैल्यू मैंने 4 अज्यूम किया था, that is wrong. So S must be 5. That makes Q to be 15. अब चेक करते हैं ये वाला सेकंड वाला इक्वेशन कि T is equal to R plus S plus 3. So T is equal to R plus S का वैल्यू 5 है, so 5 plus 3 8. इसका मतलब T और R में 8 का डिफरेंस होना चाहिए. That means R becomes 4 and T becomes 12. ठीक है, S का वैल्यू मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया, R का मिल गया, T का मिल गया, and that means P का वैल्यू कितना आएगा? रिमेनिंग कौन सा नंबर है? 10. P is 10. ठीक है, थोड़ा ट्रायल एंड एरर, क्योंकि 2 वैल्यूज थी इसलिए ट्रायल एंड एरर करना पड़ा. सो पांचों नंबर्स के वैल्यू मिल गए. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P plus R minus T? P plus R minus T will be equal to P 10 है, R 4 है, ठीक है, minus T is 12. So 14 minus 12 is equal to 2. So option number B is correct. Option number B is correct. That is R का वैल्यू, सॉरी P plus R minus T का वैल्यू 2 आ गया. So this was all. These are all the questions from CSAT 2024 question paper belonging to quantitative aptitude and logical reasoning section. ठीक है, सो सॉल्व करने के बाद ये भी आपको समझ में आएगा कि नॉट मेनी क्वेश्चंस वेर डिफिकल्ट, राइट? सो समटाइम्स क्या होता है कि हमें उसका वे आउट नहीं पता होता कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वे टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, राइट? सो just go through this. Those who are attempting next year's UPSC preliminary paper for the first time, it will be a guideline for them कि CSAT को हल्के में मत लो. It is becoming the game changer in last few years and especially from last year. So do as use it as a filler. Don't I'm not saying कि GS जितना ही करना है आपको पढ़ाई, लेकिन ऐसा मत करो कि लास्ट के 2 महीने 1 महीने में हम उसको कर लेंगे. So
that will actually ruin your whole year study. So be confident and be well prepared from right now. And if इसमें भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो. सो ठीक है, we'll meet for the next part, that is CSAT 2024 part 2, where I'll explain all the questions from reading comprehension. All the passages we'll solve, because this year it was a little tricky. So let's meet. Stay tuned. Thank you all.